allowed, no? Yes, yes. Well, so we are discussing that Bohr's model for hydrogen-like atoms, right? So if you see that radius of nth Bohr orbit, okay, so this is like n square a naught by z, right? Where a naught is 0.53 Armstrong, and n is your principal quantum number. For first Bohr orbit, will be on, then 2, 3, and so on. Okay. Okay, and z is the atomic number, right? For hydrogen-like atom, for hydrogen atom, it will be automatically on. Now, if you see that velocity of nth Bohr orbit, velocity of electron of nth Bohr orbit in nth Bohr orbit, that will be alpha c z by n, है ना? So बड़ा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि n के साथ z के साथ कैसे आपका रेडियस वेरी करता है, how it depends upon atomic number z and n. Okay, that's the important thing. Alpha is here. This is called fine structure constant, and it has value. It's a constant, right? Value is 1 by 137. This is called fine structure constant. And if you see that energy of electron in nth Bohr orbit, that will be minus 13.6 z square by n square electron volt. Okay. So that orbit, actually Bohr proved that electronic orbit is actually quantized. Okay, only certain orbit are allowed, and from that description, we basically describe that line spectra. Okay, so this is I mean that how the radius, energy, and speed of electron varied. Okay, now there is that line spectra. To see that line spectra, for hydrogen-like atom. So suppose you have a two states I'm taking, and it has energy EF with principal quantum number NF, and this level has energy EI with principal quantum number NI. When that electron jump from this state, from upper state EI to lower state EF, there will be emission of photon. And the wave number of this photon, that is 1 by lambda, that can take values that will be R into क्या आ जाएगा जी यहाँ पे Z square आ जाएगा, right? And then you have 1 by NF का square minus 1 by NI का square. Okay. So R is the Rydberg constant. यहाँ पे R क्या है जी आपका? Rydberg constant, and that is nothing but ground state energy of hydrogen atom minus ion by Hc, है ना? यहाँ पे इॉन क्या है जी आपका? इॉन है आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉट हाइड्रोजन लाइक एटम, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. और यहाँ से हम लोगों ने जेड को ऑन लेके हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, आपको याद हो तो, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज एंड सो ऑन, है ना? सो वी हैव टेकन जेड इक्वल्स टू ऑन and we have gone for hydrogen atom. We have discussed for hydrogen atom, and we have discussed various series, right? Lyman, Balmer, Tassian, and so on, by taking that NF and NI values. Okay. But most important thing for your exam, what is this? This is the effect of finite nuclear mass. Effect of finite nuclear mass of finite nuclear mass. The most important thing, एक क्वेश्चन आपका आते ही यहाँ से, है ना? तो ये आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा. जैसे फाइनाइट न्यूक्लियर मास का इफेक्ट अब हाइड्रोजन एटम में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, बट अगर इस तरह की सिचुएशन है कि जो आपका ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटिंग पार्टिकल है और न्यूक्लियस में जो सिटिंग है, इनका मास अगर ऐसा नहीं है कि एक का मास दूसरे के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो उस केस में फाइनाइट न्यूक्लियर मास का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है.
हाइड्रोजन एटम के लिए इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आपका सिटिंग पार्टिकल प्रोटॉन इज मच हैवियर एज कंपेयर टू ऑर्बिटिंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि सपोज मान लो आपका म्योनिक हाइड्रोजन, जैसे आपका म्योनिक हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन सिटिंग होती है और म्यू पार्टिकल आपका ऑर्बिटल मोशन करते हैं, राइट। यहाँ पे म्यू पार्टिकल का मास जो है दैट इज नॉट मच स्मॉलर। यहाँ पे एक्चुअली द म्यू पार्टिकल का मास इज 200 ऑलमोस्ट 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा कहने का पर्पज यही है कि इफेक्ट ऑफ फाइनाइट न्यूक्लियर मास का जो आपका रोल है दैट विल बी सिग्निफिकेंट if the orbiting particle is having some, अगर उसका मास नेग्लिजिबल नहीं है एज कंपेयर टू सिटिंग पार्टिकल एट द न्यूक्लियस, है ना। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि आपका एक दूसरे का मास क्या है बहुत ही कम या ज्यादा है, तो फिर इसका इफेक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इससे ही क्वेश्चन आती है, अगर आपको देखोगे इफ यू सी दैट आर एन डैश दिस द इफेक्ट ऑफ radius of nth Bohr orbit due to finite nuclear mass। तो फिर क्या हो जाएगी आप, do you remember this is like me by mu into rn, right? Effect of this is the radius of nth Bohr orbit when we are considering this is the radius of nth Bohr orbit when you are considering that nucleus is having finite mass, and that will be mu by me by mu, where mu is the reduced mass of your system and Rn is the radius of nth Bohr orbit. And how will define Rn here? Rn will be nothing but n square a naught by z। अगर आपका सिस्टम में z इक्वल्स टू ऑन है ना, सिस्टम में z इक्वल्स टू ऑन है, तो आपको फिर हाइड्रोजन का जो आपने इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास लेके आपने किए हो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। But remember, Rn is actually n square a naught by z, where z is the atomic number of your system, mu is the reduced mass of your system. So you have to keep in mind। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी किया थे फाइनाइट न्यूक्लियर के बेस पे रिसेंटली जो TIFR में आया था, जो कार्बन आयन को लेकर हम लोगों ने किया था, जहाँ पे म्यू पार्टिकल, म्योनिक कार्बन। एग्जैक्टली। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे जो आपका स्पीड की जो आपका ये है करेक्शन है या इफेक्ट ऑफ फाइनाइट न्यूक्लियर मास ऑन स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग पार्टिकल, इसका कोई इफेक्ट नहीं है जी। ये एग्जैक्टली जैसे आपका इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए हुए थे ऐसा ही। सो आई विल राइट दैट Vn हियर, कैसे लिखेंगे आप Vn को, अल्फा सी z by n। And similarly if you see that En dash, energy of nth Bohr orbit due to finite nuclear mass, that will be क्या आती है यहाँ पे, म्यू बाई एम, है ना। जैसे आपका यहाँ पे एम बाई म्यू आता है और एनर्जी के लिए क्या होगा, रेडियस में एम बाई म्यू आता है और एनर्जी इसमें आपका एनर्जी के लिए म्यू बाई एम आ जाएगा, ठीक है ना जी। और देन यू हैव En विल बी -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इससे क्वेश्चन आपका आते हैं, ठीक है ना जी। और आपका अगर रिडबर्ग कांस्टेंट का देखेंगे आप, तो आर डैश क्या होती है जी, आपका म्यू बाई एम इंटू आर, है ना। क्योंकि जो आपका एनर्जी आती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी, एनर्जी जो आता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। सो ऑब्वियसली जो एनर्जी का इफेक्ट होगा न्यूक्लियर फाइनाइट न्यूक्लियर मास का, वो सेम इफेक्ट यहाँ पे भी दिखेगा आपको, बिकॉज एनर्जी दैट वी हैव डिराइव्ड इन बोहर मॉडल दैट इज प्रोपोर्शनल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। इनफैक्ट आपने डिफाइन भी किए थे रिडबर्ग कांस्टेंट को, दैट इज लाइक माइनस E1 बाई एच, ठीक है ना। तो जब इसको फाइनाइट न्यूक्लियर मास लेंगे तो फिर इसको भी आप when you are taking that finite nuclear mass of energy, it means you are taking that finite nuclear mass effect in Rydberg constant, और इसको आप इस वे में डिफाइन करोगे राइट, तो ऑटोमेटिकली आपका ये आता है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से केयरफुली आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है जी। Then you have a fine structure, fine structure
फाइन स्ट्रक्चर में क्या आता है आपका, इफ यू सी दैट फाइन स्ट्रक्चर, इन फाइन स्ट्रक्चर यू हैव ए फाइन स्ट्रक्चर, आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइक अगेन, फाइन स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन लाइक विल बी फर्स्ट, okay. So this is a total Hamiltonian of hydrogen like atom. When you are considering that fine structure, it will have H naught, the unperturbed case, then kinetic energy correction you have to consider, right? Then spin orbit correction, HSO, and then you have Darwin correction. है ना? तो बोहर ने सिर्फ H naught को लिख के, Sir, हाँ जी, हाँ जी, sir, I have discussed now, sir, that I have a doubt, means I have a confusion that I forgot. हाँ जी, Actually, for a Hammer line, means how many lines experimental and means observation for experiment means if we find, then there will be 5 lines, na? 7 lines. For so can you please repeat that again, 5 and 7, because if we Yeah, if you see that notes, I think I have discussed. I mean, if you consider, yes sir, can you please say that again? हाँ तो अपने आप इसको देखो ना, जैसे आपने सारे करेक्शन जब लैम्प शिफ्ट तक की हो, जैसे आपने फाइन स्ट्रक्चर में किए है, ओके आई एम टेलिंग, जैसे एक्चुअली रियलिटी में जो आपको एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, एक्सपेरिमेंटली आपको 7 लाइन से है ना, मटेरियल्स में थोड़ा सा उसमें करेक्शन का जरूरत है, मटेरियल को देख के मत बोलना, ठीक है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली आपका 7 लाइन से, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर ने क्या, अकॉर्डिंग टू दैट फाइल स्ट्रक्चर डिस्कशन विल हैव 5 लाइंस, क्योंकि फाइल स्ट्रक्चर आफ्टर इंक्लूडिंग फाइल स्ट्रक्चर द एनर्जी वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर j, ठीक है ना, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया है, लैम्पशिफ्ट का एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या देखा गया है, n एंड j सेम होने के बाद भी s and p orbital they are not degenerate, है ना, स्पेशली 2s हाफ एंड 2p हाफ, एक्चुअली 2s हाफ थोड़ा अपर स्टेट पे रहता है, उसीलिए जब लैम्पशिफ्ट को मतलब एक्चुअली जब देखोगे बामन लाइन में आपका 7 लाइंस मिलेगा, बट फाइल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको 5 लाइंस मिलेगा। Okay sir. Okay, so this I mean this only Bohr assume, जो आपका टोटल हैमिल्टनियन बोर ने assume किया था, कितने assume किया था, that is like p square by 2m kinetic energy part and then z square by 4 pi epsilon naught r, बोर ने इतना assume किया था, बट ये सारे करेक्शन डार्विन डिराक ने किया था, है ना, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन, और हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था हर एक का जो रोल कहाँ पर है ना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो HSO के कोरस्पोंडिंग जो आपने स्पिन ऑर्बिट एनर्जी लिखोगे, स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग, है ना, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ हेवी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होगी उसका स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि बोर्न ने अज्यूम किया था जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक केस, राइट, बट व्हेन यू हैव a heavy element, for that case speed of electron will be very large, especially for low n, right, I mean lower state पे, तो उसमें आपको रिलेटिविस्टिक का इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको वहाँ पे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को लेके चलना पड़ेगा। और स्पिन ऑर्बिट इसलिए है क्योंकि आपका 2 मैग्नेट है, एक आपका स्पिन के कारण और एक आपका ऑर्बिटल मोशन के कारण, तो उनके मैग्नेट के इंटरेक्शन के कारण स्पिन ऑर्बिट जो स्प्लिटिंग या स्पिन ऑर्बिट एनर्जी आया है। स्पेशली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोपोर्शनल टू z की पावर 4 है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग है दैट इज प्रोपोर्शनल टू z की पावर 4, है ना। जैसे इफ यू टेक दैट स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग, we'll have p orbit, it will be splitted into 2 part, right, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है अभी, तो यू विल हैव 2p3/2 एंड 2p हाफ, ठीक है ना। तो सपोज मान लो एक आपका हीलियम का सॉरी एक आपका हाइड्रोजन का केस है और आपका n दोनों का सेम है, n = 2 है ना, n = सेम है, एक आपका हाइड्रोजन का केस है और आपका एक हीलियम प्लस का एक केस है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें हीलियम के केस में ये जो स्प्लिटिंग होगा, है ना, ये बहुत ही ज्यादा 16 गुना सॉरी कितना, हाँ 16 गुना ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन वाला,
तो यहाँ पे भी आपका 2p3/2 और 2p½ में स्प्लिट हो जाएगा p ऑर्बिटल ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। बट इसमें जो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग होगा ESO दैट विल बी 16 टाइम for helium plus case. This splitting will be 16 times higher as compared to hydrogen case. Especially this formula is really important. ये छोटा फॉर्मूला है बट यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपका, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये इस टर्म का सिग्निफिकेंस है। स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग विल बी वेरी वेरी significant if you take large jet. For hydrogen case, if you take for a particular n, I am comparing for a particular n, I am taking p orbital. Okay, I'm taking p orbital. For hydrogen case, p orbital will be split in two parts, 2p3/2 and 2p½ तो यहाँ पे ESO जो होगा स्प्लिटिंग, है ना? और ये भी मैंने इस हीलियम प्लस के लिए मैं 2 स्टेट लिया, उसका p ऑर्बिटल को जब देखूंगा मैं, तो यहाँ पे जो आपका स्प्लिटिंग होगा दैट विल बी 16 टाइम्स हायर। 16 टाइम्स मींस 2⁴ टाइम्स हायर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन केस। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? ESO द अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग बिटवीन दैट नॉन जीरो L, एक नॉन जीरो L दो पार्ट में डिवाइड होगा, उनके बीच में जो स्प्लिटिंग है दैट इज योर ESO। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डार्विन टर्म आपको पता ही है, दैट इज arising because of vacuum fluctuation and that is significant for L equals to 0 orbit. But if you write from here, if you write the total energy of electron, then it will be how much? It will be minus me(c²/2) and z alpha square by n square, and then you have 1 plus z alpha square divided by n square, then n by j plus half minus 3/4. Right. So you can see that now total energy of electron now depends upon which quantum number? It depends upon n and j. बट जब इस एनर्जी को लेके, है ना, ये एनर्जी को लेके जब कैलकुलेट किया गया है और बामा लाइन को जब देखा गया है बाय यूजिंग प्रॉपर सिलेक्शन रूल क्या होती है? यहाँ पे डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या होती है? +-1 होती है, एंड डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 +-1 इज द सिलेक्शन रूल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना जी? तो इसको जब यूज किया गया है, फिर बामा लाइन को देखा गया है, अकॉर्डिंग टू बोर बामा लाइन एक ही लाइन होगा, बट फाइव स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। बट लैम्पशिफ्ट ने जो दिखाया है कि 2s½ एंड 2p½ दोनों का n एंड j सेम होने के बाद भी दे आर नॉट डिजेनरेट, दे आर बेसिकली नॉन डिजेनरेट। 2s½ का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अगेन वैक्यूम फ्लक्चुएशन ऑफ EM फील्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ EM फील्ड। तो एक्चुअली रियलिटी में देखोगे तो बामन लाइन में आपका 7 लाइंस होंगे, तो एक मटेरियल में थोड़ा सा वहां पे करेक्शन करने का जरूरत है। एवरीथिंग इज करेक्ट देयर, बट ये बात जरूरी वहां पे ये मेंशन करना चाहिए कि आपका एक्सपेरिमेंटली 7 लाइंस है, ना कि 5 है। ठीक है सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर ये सारे डार्विन टर्म और स्पिन ऑर्बिट टर्म, इन सभी की एनर्जीज के एक्सप्रेशंस बहुत बड़े बड़े हैं, तो सारे लर्न करने और डिपेंडेंस लर्न करनी है बस। जितना मैंने यहाँ पे बोला है उतना ही सफिशिएंट है। डिपेंडेंस ओनली। Exactly. ओके सर। Okay, then you have a magnetic moment. टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे आप? total magnetic moment of orbiting electron, as you have seen that you have a nucleus and electron is orbiting, right? Okay, when it is having orbital motion, it will have orbital magnetic moment, and it will spin, it will have spin magnetic moment. But total magnetic moment कितना होगी? Moment कितना होगी जी? Basically denoted by mu j, right? So mu j total magnetic. mu L plus 1. So directly you can write like z into E/2me. अगर टोटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूछे ना, तो फिर डायरेक्टली इससे ही कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। -g into E/2me and then you have j, right? अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे आप तो फिर क्या आ जाएगा जी आपका? g E/2me
एंड इसका क्या आ जाएगा सर, J into J plus on H plus, right? H plus. हाँ, एंड यू विल हैव G इज कॉल्ड लैंड डेंसिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है ना, 5 मार्क्स का। ऑन प्लस J into J plus on प्लस S into S plus on minus L into L plus on डिवाइड बाय ट्वाइस J into J plus on। ठीक है ना, तो ये लैंड डेंसिटी फैक्टर डायरेक्टली J, S और L दे के भी क्वेश्चन दे देता है। सपोज मान लो आपको दिया गया है कि 2p 3/2 का लैंड डेंसिटी फैक्टर निकालो, है ना, तो इससे आपको पता चल रहा है कि J कितना है, इसका S कितना है और इसका L कितना है, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में। इन दिस वे यू विल कैन कैलकुलेट दैट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना जी, आप कितना है। और एक चीज मैं जरूर करना चाहता हूँ, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे का कि डिजेनरेसी कैसे निकालेंगे आप। How will write? How will calculate the degeneracy? 2J plus बताइए। 2J जैसे plus बच्चे 1. का मैंने देखा हूँ, बच्चे का बड़ा कंफ्यूजन होता है। सोडियम का एक क्वेश्चन आया था शायद, सोडियम का एक फर्स्ट स्टेट का डिजेनरेसी कितना है। आप लोगों ने किए हो मटेरियल में। एक्चुअली ये प्रीवियस मटेरियल है ना, सॉल्यूशन में थोड़ा सा ये है। एक कंचन शायद पूछा था मेरे को, मैंने उसको बताया था कि डिजेनरेसी कैसे निकालोगे। तो फर्स्ट स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन था, शायद देख लेना, सब लोग देख लेना। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली जैसे आपने बताया, जैसे फॉर ए पार्टिकुलर जे क्या करना पड़ेगा आपको, डिजेनरेसी कितना आएगा, कितना आएगा डिजेनरेसी, दैट विल बी 2J plus 1 रहेगा, राइट। फॉर ए पार्टिकुलर J डिजेनरेसी विल बी 2J plus 1। फॉर ए पार्टिकुलर L डिजेनरेसी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 2L plus 1. दैट विल बी 2 into 2L plus 1। ठीक है ना। अब जैसे तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और वहां से आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है डिजेनरेसी कितना है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ मान लो आपको गिवन है और उससे पूछा गया है कि आपका डिजेनरेसी कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलएस कपलिंग करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, टर्म निकालना पड़ेगा। एलएस कपलिंग करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, टर्म निकालना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप टर्म निकाल लेंगे ना एलएस कपलिंग करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का एल को सम करो और एस को सम करो, फिर फाइनली एल और एस को कपल करो, उसमें से आपको टर्म मिल जाएगा। और फिर डिजेनरेसी जब देखोगे फिर क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म का जे को लेके 2J plus ऑन का सम लेना पड़ेगा, है ना, सारे का सम लेना पड़ेगा। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन होगी और पूछा जाएगा कि इसका डिजेनरेसी कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, एलएस कपलिंग करके आप टर्म निकाल लीजिए। हर एक टर्म का क्या होगा, जे वैल्यू होगा, हर एक का जे का कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिजेनरेसी को लेना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। So in that way you can write 2J plus on इसका सम। ठीक है ना जी, कर लेंगे सब लोग। Yes, sir. सब लोग ट्राई करना, सोडियम का गिवन है ना, और उसका आंसर आएगा 150 से रिसेंटली आया है क्वेश्चन शायद, है ना, गेट में, तो उसको ट्राई करना, बुकलेट में गिवन होगी PIQ। ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट योर मैग्नेटिक मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पार्ट इज योर एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग, है ना। तो एक तो केस आती है आपका नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एलएस कपलिंग ये स्कीम कब यूज होती है, बेसिकली आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होती है, राइट, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे आप, एलएस कपलिंग में जो आप टर्म निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म को आप कैसे डिफाइन करते हो, आई डिफाइन द टर्म। So term is defined as 2s plus on L and J. This is the notation of term, right? In LS coupling. तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में क्या है, बेसिकली आपको सारे L को सम करना पड़ेगा, L1, L2, L3, है ना,
इसका पहले आपको वेक्टर सम लेना पड़ेगा एंड दैट विल बी दे विल कपल एंड दे विल गिव यू रिजल्टेंट एल। एंड सिमिलरली सारे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, आपका स्पिन का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, ठीक है ना जी। एंड दैट विल प्रोवाइड यू नेट एस। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कपल करना पड़ेगा एंड दैट विल बी योर जे। सो जे विल बी वेक्टर ऑफ एल प्लस एस, है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर दिस इज द वेक्टर सम, राइट। और वेक्टर से आपको मैग्नीट्यूड भी कैसे करना कैलकुलेट करना होता है आपको पता है, राइट। जैसे मान लीजिए L1 एंड L2 है और इसका वेक्टर सम लोगे तो फिर नेट एल विल बी मॉड ऑफ L1 plus L2 to L1 minus L2. एग्जैक्टली। और नेट एस क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2। तो ऐसे एल एंड एस आ गया, फिर सम करेंगे आप इनका, जो एल आया है और एस आया है उनका सम करेंगे तो जे क्या आएगा, मॉड ऑफ एल प्लस S2 मॉड ऑफ एल माइनस एस। इस वे में आपको सम करना पड़ेगा, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, टर्म निकालना पड़ेगा, फिर आपको टर्म निकालना पड़ेगा, इस वे में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपका जो ग्राउंड स्टेट है, कैसे आप अरेंज करेंगे टर्म को, जैसे हम ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जे मिलेगा, एल मिलेगा, एस मिलेगा। तो ग्राउंड स्टेट, हाउ विल आइडेंटिफाई द ग्राउंड स्टेट, सबसे मिनिमम एनर्जी, सबसे देखो सबसे लार्जेस्ट, पहले क्या देखोगे, सबसे लार्जेस्ट एस, एल वेक्टर सबसे पहले लार्जेस्ट एस आइडेंटिफाई करोगे, उस लार्जेस्ट एस का लार्जेस्ट एल को आइडेंटिफाई करोगे। पहले सबसे पहले लार्जेस्ट एस आइडेंटिफाई करोगे, उस लार्जेस्ट एस का लार्जेस्ट एल को आइडेंटिफाई करोगे, फिर लोवेस्ट जे, हाँ लोएस्ट उस लार्जेस्ट एल का लोएस्ट या स्मॉलेस्ट जे, ठीक है ना जी। So this is the case of non-equivalent electron. सर हमने ब्रीड स्कीम नहीं किया, क्यों नहीं किया? ब्रीड स्कीम कर सकते हो आप, बट ब्रीड स्कीम का Equivalent जो electron, equivalent electron. हाँ जी हाँ जी, Its scheme is applied for equivalent electron, equivalent. हाँ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन Non वही मैं अभी कर रहा हूँ। बट उसमें भी नहीं किया हमने। मैं नहीं किया क्योंकि उसका जो आपका कर तो सकते हो, इट विल बी टाइम स्पेंडिंग, बट उसका जो आउटकम है मैंने बड़ा अच्छे से उसको समराइज किया था। yes, sir, sure. That Eight हाँ, weeks. बड़ा First अच्छे से समराइज किया, उसको कर सकते हो। E1L वो Exactly. कॉम्बिनेशन वाला, ओके, तो उससे सेम आंसर ही आएगा। मैं कभी अगर आते तो मैं नहीं आते तो फिर मैं बता देता आपको, उसका आउटकम एकदम नाइसली हम लोगों ने डिस्कस ये किया सर था। E1 कॉम्बिनेशन और डॉट Exactly, कॉम्बिनेशन। exactly. Equivalent electron, LS coupling for equivalent electrons, ठीक है। तो फिर इसमें भी क्या करना पड़ेगा जी, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, राइट, मोड ऑफ L1 L2 L3, ठीक है। देन आपको मोड ऑफ एस निकालना पड़ेगा, सारे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एल एंड एस वैल्यूज आ जाएगा, राइट, कई सारे एल एस आ जाएगा। अब इसमें इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में क्या करना पड़ेगा, जैसे आप बता रहे थे कि क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। जैसे आपका एल एस कपलिंग के लिए सारे एल के साथ सारे एस का कपलिंग होता है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में, बट यहाँ पे सारे एल और सारे एस का कपलिंग नहीं होगा इक्विवेलेंट केस में, है ना। तो यहाँ पे क्या कपलिंग होगा आपका, बताओ, इवन इवन एल के साथ इवन एस का कपलिंग है और दैट विल प्रोवाइड यू जे, है ना। सिमिलरली ऑड एल के साथ ऑड एस का कपलिंग होगा एंड दैट विल प्रोवाइड यू जे, ठीक है ना जी। यस सर। बट इसमें कैसे ग्राउंड स्टेट को आइडेंटिफाई करोगे इसमें से, तो Hund's rule सर। हाँ हुन्स रूल, अगेन यू अप्लाई हुन्स रूल। अब जैसे मोर देन लेस देन हाफ फील्ड है, लोवेस्ट जे, लेस देन सॉरी, हाफ फील्ड है आपका, इसमें क्या करेंगे आप, हाईएस्ट क्या लेंगे आप, हाईएस्ट एस,
हाईएस्ट एस उसका highest J, highest L, sorry, हाईएस्ट एल लेंगे आप और lowest J, लोएस्ट। अगर मोर देन हाफ फील्ड है, highest S, मोर देन हाफ फील्ड है आपका, फिर क्या लेंगे आप? hi- हाईएस्ट S, हाईएस्ट एस, highest L, हाईएस्ट एस का हाईएस्ट एल और highest J. एग्जैक्टली हाईएस्ट। दिस इज द केस ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज मान लो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है पी स्क्वायर का। पी स्क्वायर का आपको ग्राउंड स्टेट निकालनी है, तो कैसे करोगे आप? पी मतलब क्या है? 3 रहेगा। Less than half filled case. हाँ, -1 0 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन से इट विल बी स्टेइंग लाइक दिस। तो हाईएस्ट जो एल आएगी कितना आएगी? हाईएस्ट एल कितना आएगी यहाँ पे? -1. मतलब मॉडल एम एल का सम, राइट? कितना आएगा? Yes, mine. हाईएस्ट More 1. हाईएस्ट एस कितना आएगा? मॉड ऑफ एम एस का सम कितना आएगा? Half plus half 1, half minus half ओके। 0. और 1. हाँ, जो आपका जे आएगा यहाँ पे लेस देन हाफ है, तो जे क्या लेना पड़ेगा? L मॉड minus S. तो इसका ग्राउंड स्टेट आ जाएगा 3 P0 ठीक है। और अगर यहाँ ये आपका एटम मोर कार्बन हाफ एटम। फील्ड होता, मोर देन हाफ फील्ड होता, तो फिर ये सारे इस तरह से ही निकालते हैं, जे क्या हो जाता है? मॉड ऑफ एल प्लस एस। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल है, बट इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सर इसमें आपने स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला लिखवाया था, डू वी नीड टू लर्न दैट? एग्जैक्टली वी नीड एक्चुअली, जैसे आपने पढ़े हो ना, F इक्वल्स टू 1/2 m स्क्वायर c स्क्वायर 1/r dv by dr, राइट? तो कभी It कभी Yes. actually depends on 1 by r dVdr potential would be एग्जैक्टली right? एग्जैक्टली ये कभी कभी क्या होता है ना, भी को Yeah. प्रोवाइड किया जाता है और बोलते हैं कि हाउ दैट स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग डिपेंड्स अपॉन r, हाउ इट इज फंक्शन ऑफ r। कैसे ये भाई? डिपेंडेंस और डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको ये भी प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो फिर आपको पूछा जाएगा, अगर भी नेचर ऑफ भी इज लाइक दैट, पोटेंशियल आपको गिवन होगी और फिर पूछा जाएगा कि हाउ कपलिंग डिपेंड्स अपॉन r, ठीक है ना, ओके, r⁻⁻⁻। डेरिवेट करके। ओके हाँ, तो ये ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पोटेंशियल अगर आपको गिवन है, तो हाउ विल justify that your strength of coupling depends upon r, इसीलिए। सर आई वांट टू आस्क, डू आई नीड टू लर्न दिस कांस्टेंट टर्म आल्सो टू No, m स्क्वायर c ये मैंने स्क्वायर? इसीलिए पढ़ाता हूँ, जैसे तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग स्पिन भी इसमें भी आता है ना, जैसे तुम्हारा जब सेल मॉडल पढ़ती हो वहां पे भी आता है स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग। तो फिर वहां पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग, वो स्ट्रेंथ ऑफ स्पिन, वहां पे भी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है, बट वो कपलिंग काफी वीक है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा मास ऑफ क्या आ जाएगा? वहां पे मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, राइट? जैसे यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑर्बिट कपलिंग देख रहे हो, और यहाँ पे क्या है? दैट स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियस की बात चले तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वहां पे भी है, बट वहां पे कपलिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास ऑफ न्यूक्लियर के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड दैट इज क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग फॉर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फॉर इलेक्ट्रॉन इट विल बी quite larger as compared to nucleon case. That's why this mass is also important. कैसे आप? ओके सर। बट एग्जाम में ये फैक्टर आपका इम्पोर्टेंट है ना, ये अगर आप भूल भी गए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम टाइम में इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं। अभी मैंने तो जस्ट अभी 20-25 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो बहुत सारा एक साथ हो गया है। कोई नहीं, वो एग्जाम के टाइम याद आ जाएगा, अगर आपने पढ़ा होगा ना तो याद आ जाएगा। एग्जाम के पहले सबको ही लगता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब पहले एग्जाम देने गया था और मैं सोच रहा था कि मैं एग्जाम छोड़ दूँ, और उस टाइम मेरा 19 रैंक आया था, वैसा लगता है ना? एग्जाम के पहले सब कुछ लगता है कि छोड़ दे, एग्जाम याद नहीं है, पढ़ाई नहीं हुआ। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं।
ठीक है, then there is a Landé interval rule. Landé interval rule, right? So as you know that जो स्पिन ऑर्बिट हैमिल्टोनियन होती है क्या होती है, ए एल डॉट एस, है ना? तो लैंडे इंटरवल रूल बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन टू लेवल्स, टू सक्सेसिव लेवल, है ना? जैसे इसमें से एलएस कपलिंग से आपको कई सारे टर्म मिल जाएगा, राइट? तो दो टर्म के बीच में, दो टर्म मतलब दो लेवल्स है, उनके दो सक्सेसिव लेवल्स के बीच में कितना सेपरेशन है, दैट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग लैंडे इंटरवल रूल. तो ये जो स्प्लिटिंग है या सेपरेशन है बिटवीन टू सक्सेसिव लेवल, मतलब दो लेवल का, दो सक्सेसिव लेवल मतलब क्या है, दो लेवल का आपका एल वैल्यू सेम है. प्लीज कीप इन माइंड, दो लेवल्स का एल वैल्यू सेम है और एस हाँ सेम है. प्लीज, जैसे आपका सपोज मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ISJ आ जाएगा. हाँ 2p3/2 है आपका, 2p हाफ है, तो दोनों का एल सेम है, दोनों का एस सेम है, बट दोनों का जेस डिफरेंट है. तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी सेपरेशन होगी, तो ये जो कांस्टेंट फैक्टर ये आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डेल्टा ई फॉर टू सक्सेसिव लेवल, दैट यू विल राइट दैट एनर्जी लाइक ej minus ej minus on. फॉर एग्जांपल ej माइनस ej माइनस ऑन, है ना? अगर ये j है, ये j माइनस ऑन है, तो इनके बीच में जो सेपरेशन होगी दैट विल बी हाउ मच, ये जो कांस्टेंट फैक्टर गिवन होगा यहाँ पे a इनटू लार्जेस्ट j क्या है यहाँ पे, j h क्रॉस. अगर सपोज मान लो ये स्पिन ऑर्बिट हैमिल्टन आपको मेंशन्ड है, ठीक है, और आपको पूछा गया है कि 2p3/2 और 2p हाफ के बीच में सेपरेशन कितना है, तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, a इनटू ना 2p3/2. 3/2 तो यहाँ पे j क्या है बेसिकली, j इज 3/2 एंड j माइनस ऑन इज हाफ. तो यहाँ पे जो सेपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो J. लार्जेस्ट है 3/2 h क्रॉस. तो दिस विल बी द सेपरेशन. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आता है डायरेक्टली, है ना? तो फिर इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करने का ही जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द use of Landé interval rule. You can directly calculate that energy separation between two successive levels having same, please keep in mind, having same L value, having same S value. Then you can use that Landé interval rule and you can easily find the energy separation between two successive levels having J difference on. Okay. Then you have a JJ coupling for multi-electron system. You have a JJ coupling for multi-electron system. Electron system. ठीक है. In JJ coupling, how is to define the term? So first of all, इसमें JJ coupling में क्या होगी, L1 के साथ S1 का coupling होगा and that will provide you J1, right? L2 के साथ S2 का होगा coupling and that will provide you J2, right? L3 के साथ S3 का coupling होगा and that will provide you J3 and so on. Then क्या होगा, इनके आपस में क्या होगा, कपल होगा, है ना? And that will provide you J. J will be J1 plus J2 plus J3 and so on. ठीक है, और इसमें जो टर्म को डिफाइन करते हो आप, कैसे डिफाइन करते हो टर्म को? टर्म इज डिफाइंड एज J1 J2 J. and then J, है ना? And it has that J1 J2 are interchangeable, तो इसको इस way में भी लिख सकते हो, J2 J1. ठीक है ना? तो बेसिकली ये आपका नॉन इक्विवेलेंट का केस है ना? इक्विवेलेंट के लिए रेयरली आते हैं, है ना? तो नॉन इक्विवेलेंट का केस है आपका. ठीक है, then you have a Zeeman effect. Then you have a Zeeman effect.
So first of all, you have a normal Zeeman effect. You have a normal Zeeman effect. That is observed for S equals to 0. Then Anomalous. anomalous Zeeman effect. That is for S non-zero. Then Bastian back. effect. That is for S equals to non-zero. But यहाँ Strong. पे क्या है, ये आपका weak field के लिए, Weak. weak B applied magnetic field, and this is for strong B. ठीक है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल जीवन इफेक्ट का केस, जहां पे आपको पता है नॉर्मल जीवन इफेक्ट मतलब एस इक्वल्स टू 0, मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन। जहां पे भी सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन है उसका मतलब आपका नॉर्मल जीवन इफेक्ट, बिकॉज एस इक्वल्स टू 0 के लिए सिंगलेट आती है। और इसमें हमेशा आपको क्या मिलते हैं, 3 जीवन लाइन। कोई भी आपका सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन है और आपको पूछा गया कितना जीवन लाइन, दैट विल बी 3 जीवन लाइन। ठीक है, इसमें 3 में से क्या होगा, 2 आपका सिग्मा लाइंस होगा, एक पाए होगा। सिग्मा लाइंस, और एक आपका पाई लाइंस, एक पाई लाइन होगा, राइट। और इनमें जैसे आपका नॉर्मल जीवन इफेक्ट में क्या बोलता है, 3 लाइंस मिलते हैं, सिग्मा प्लस, देन पाई एंड सिग्मा माइनस। इसमें जो जीमान सेपरेशन है, जीमान सेपरेशन मींस व्हाट है यहाँ पे, सेपरेशन बिटवीन सिग्मा प्लस एंड पाई और पाई एंड सिग्मा माइनस, ये कितना आता है बताओ, ये सेपरेशन कितना आता है बताओ। जीमान सेपरेशन, आई मीन दैट सेपरेशन बिटवीन दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। सेपरेशन बिटवीन दिस टू कितना आती है जी, दैट इज म्यू बी आता है, राइट। एनर्जी सेपरेशन बिटवीन सिग्मा प्लस एंड सिग्मा, 3 लाइन आते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट में। सिग्मा प्लस एंड पाई के बीच में सेपरेशन कितना होता है, म्यू बी इनटू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इनफैक्ट ये सेपरेशन भी कितना होता है, म्यू बी इनटू बी, राइट। ये सेपरेशन बिटवीन दिस टू सक्सेसिव जीमान लाइंस इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड Zeeman separation. That will be mu b. In terms of energy, in terms of wave, in terms of energy, that is mu b. ये पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड देन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कितना आएगा, दैट विल बी mu b by h, and right, because e equals to nothing but h nu, right। और इन टर्म्स ऑफ wavelength, दोनों का wavelength सेपरेशन कितना आता है, lambda square mu b by h। Okay, so first of all, in normal Zeeman effect you will have always 3 Zeeman lines. Whenever you have a singlet to singlet transition, you have a 3 Zeeman lines, because the normal Zeeman effect case. Okay, 2 will be sigma lines, 1 will be pi lines, and Zeeman separation will be mu b. In energy, in frequency, that will be mu b by h, and wavelength का lambda square mu b by h। ठीक है, और नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए जो सिलेक्शन रूल यूज करते हो, क्या है वो, साइन बताओ। सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा ml 0 equal to 0 and और प्लस माइनस 1. ठीक है। And then you have a second case, anomalous Zeeman effect. And that is observed for spin non-zero. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे आपका सेपरेशन आफ्टर अप्लाइंग वीक मैग्नेटिक फील्ड फॉर एस नॉन जीरो केस, एक लेवल क्या होगा, डिफरेंट सब लेवल में टूट जाएगा, राइट। बट सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव सब लेवल, जैसे एक लेवल बहुत सारे सब लेवल में स्प्लिट हो जाएगा आप इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड फॉर एस इक्वल्स टू नॉन जीरो। 2 सब लेवल के बीच में जो सेपरेशन होती है, दैट इज डिसाइडेड बाय g mu b into mj।
है ना, mj it will not be mj, mj will be on how much, right, on दो लेवल के बीच में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक लेवल एनोमलस जीमन इफेक्ट अगर देखोगे, एक लेवल बहुत सारे लेवल में टूट जाएगा, राइट। तो दो सब लेवल के बीच में जो सेपरेशन आएगा, ऑन लेवल विल बी स्प्लिटेड इनटू मेनी सब लेवल्स, दो सक्सेसिव सब लेवल्स के बीच में जो स्प्लिटिंग होगी और एनर्जी सेपरेशन होगी, दैट विल बी हाउ मच, विल बी जी म्यू बी इनटू बी, है ना। कोई एक लेवल, सपोज मान लो आपका कोई एक लेवल्स दे दिया, कोई एक लेवल्स दे दिया और उसमें पूछा गया है कि आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव सब लेवल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत सारे केस में क्या होती है, स्पिन नॉन जीरो केस में क्या होती है, जी फैक्टर 0 हो जाता है। बहुत सारे केस है जहाँ पे सपोज मान लो कोई एक स्ट्रेट ले लिया आपने, if I take example that will be more clear, let me take that example. सपोज मान लो आपका 4D हाफ है, 4D हाफ एक लेवल है, और देखो यहाँ पे स्पिन नॉन जीरो केस है, और अपने इसमें क्या किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। आपको क्या लग रहा है कि ए लेवल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो ये लेवल टूट के बहुत सारे सब लेवल में ब्रेक होना चाहिए, राइट। नहीं, because of anomalous Zeeman effect, if you apply magnetic field on this state, what will happen, it will break into many, it will split into many sub levels because of different mj। यहाँ पे j कितना है, j half है, so it will be break into sub levels having range of mj value, that will be minus j to j, j to minus j, right। बट अगर कैलकुलेट करोगे इस लेवल का, जब अपने जी फैक्टर कैलकुलेट करोगे, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो 0 मिलेगा, इसका मतलब क्या है, इसका कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो that's why I'm saying that when you will calculate the separation between two successive sublevels, first you have to calculate the g factor of this level. You know how to calculate g factor for a given j, l and s, then you proceed for calculation। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने अच्छे से शॉर्टकट किया था इसका, कि नंबर ऑफ जीमान लाइंस इन एनोमलस केस। ओके, वैसे सिलेक्शन रूल लगाते जाओगे काफी डिफिकल्टी आ जाती है। इनफैक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप उसको कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया था शॉर्टकट लगा के, कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे क्या, डेल्टा जे का नेचर देखोगे, राइट, देन जे का नेचर देखोगे, देन नंबर ऑफ जीमान लाइन, डायरेक्टली नंबर ऑफ जीमान लाइन, ठीक है ना जी। जैसे सपोज मान लो डेल्टा जे अगर नॉट इक्वल, डेल्टा जे नॉन जीरो है केस, ठीक है ना, डेल्टा जे नॉन जीरो, और whether डेल्टा जे नॉन जीरो, whether j is integer or non integer, whether it is integer or non integer। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ जीमन लाइंस कितना आ जाएगा जी, बताओ। So first to find the pi line, हाँ, तो 3 ऐसे into हो सकता 2j है, plus number 1. of files. 3 into 2j lower plus 1, Yes. राइट, दिस विल बी नंबर ऑफ जीमन लाइन। अगर डेल्टा जे आपका 0 है और आपका ये j नॉन इंटीजर है, -2. so it will be like 3 into j lower plus 1 minus 2। अगर आपका डेल्टा जे 0 है और j इंटीजर है, फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे, 3 into 2j. 2j lower, right। so this will be number of Zeeman lines, ठीक है। देन पास्चन बैक इफेक्ट। पास्चन बैक इफेक्ट में क्या होता है जी, पास्चन बैक इफेक्ट बताइए। तो एक लेवल बहुत सारे सब लेवल में डिवाइड होगी, ओके, एंड दैट एनर्जी ऑफ ए लेवल हाउ विल डिफाइन आफ्टर अप्लाइंग पास्चन बैक इफेक्ट, विल हैव ई नॉट प्लस क्या होती है, म्यू बी बी ml प्लस ट्वाइस ms, ml प्लस ट्वाइस ms, है ना।
तो नंबर ऑफ कितना, पहले तो बात है कि कितना लेवल्स होंगे, कितना सबस्टेट होंगे। तो अगर सबस्टेट बोले, सबस्टेट कितना होगी, 12+1 into 2s+1. सबस्टेट 12+1 into 2s+1. And out of them, that degeneracy would be eliminated, and that would be sub-level. हाँ, एंड देन यू कैन कैलकुलेट दैट, ये आपका सबस्टेट होगा, बट कुछ सबस्टेट क्या होगा, डिजेनरेट होगा। तो डिजेनरेट मतलब क्या है आपका, कि सबस्टेट, नंबर ऑफ सबस्टेट और नंबर ऑफ सब लेवल बराबर होना नहीं होगा एक्चुअली सब लेवल जो होती है फॉर दिस केस विल बी स्मॉलर, विल बी लेस नंबर एज कंपेयर टू सबस्टेट, क्योंकि कुछ सबस्टेट क्या होती है आपका, डिजेनरेट होती है। एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट, कैसे आप सबस्टेट को, सॉरी सब लेवल को कैसे कैलकुलेट करोगे, just by taking different ml and ms combination and you have to calculate the energy value, है ना। तो different जितने एनर्जी वैल्यूज मिलेंगे आपको, है ना, that will be your सब लेवल। क्योंकि कुछ सबस्टेट का क्या है, कुछ सबस्टेट, how will define that substate, substate will be defined by ml and ms combination। तो कुछ सबस्टेट का क्या होगा, डिफरेंट ml and ms होने के बाद भी their energy will be same, so they will be basically degenerate। So substrate means different, जितना different energy eigen values possible है, I mean this energy different, जितना different energy values possible है, that will be your number of sub level। और हम लोगों ने इसका एग्जांपल भी लिया था 2p and 2d का, राइट। एंड नेक्स्ट यू हैव दैट इज योर ब्रॉडनिंग, है ना। ब्रॉडनिंग में बेसिकली आपका डॉपलर ब्रॉडनिंग का जो ये है फॉर्मूला वही आती है, of spectral lines, broadening of spectral lines। So first of all you have a natural broadening, you have a natural broadening। natural broadening में जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है डेल्टा, ब्रॉडनिंग इन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/4 pi tau. 1/4 pi tau is the lifetime of upper level। एंड डेल्टा लैम्डा n कितना आएगा, वेवलेंथ ब्रॉडनिंग। You have to calculate delta nu equal to c by lambda, nu equal to c by lambda, then c by lambda square del lambda, which lambda is fine. square by c into delta nu, राइट। चेक करो, ठीक है। तो द नेचुरल ब्रॉडनिंग, और जो डॉपलर ब्रॉडनिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एटॉमिक सोर्स, डॉपलर ब्रॉडनिंग। ये कितना होता है जी, ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा डी, डेल्टा ओमेगा डी कितना आती है 1.67 करेक्शन फैक्टर, देन ओमेगा नॉट बाई सी रूट ओवर ट्वाइस केबीटी बाई एम, ठीक है। तो दिस इज योर ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग। तो यहाँ से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉपलर ब्रॉडनिंग टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी होती है ना, वो कभी कभी अभी रिसेंटली दे रहा है कि डिफरेंट टेम्परेचर देके उसका रेशियो निकालना, ठीक है। So this is all about your atomic physics. We have summarized nicely. Next day we are going, we will discuss about that molecular physics. Okay. Well then, see you in the evening. Thank you, sir.